So, good morning, everyone. I am Kirti Jain, Joint Director, AMH SSC. We are here celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, 75 years of independence. Now, I would like to thank our Dr. Rupak Vasish, Director General, Smriti Ma'am, the Senior Director Ma'am, Ashish Sir, Atul Sir, Arpit Sir, Sridhar Sir, and thanks to all my AMH SSC team. Special thanks to Priyanit Ma'am also. And now I think we should start our topic. We are addressing the AMHSSC, what we have taken the initiatives towards skilling and the NATS, and we will describe you about our COE Delhi and also Tirupur. So let's start. So Apparel Made-ups and Home Furnishing Sector Skill Council comes under Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. So the key stakeholders of AMH SSC is Ministry of Textile, Apparel Export Promotion Council, NSDC, and Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. The arms of AMH SSC is we have 4,500 training providers and 46 assessment bodies, master trainers 250, certified assessors 3,500, and certified trainers is 10,500. Now, best practices followed in AMH SSC. AMH SSC has developed 45 job roles in the sector, ensure timely assessment and certification in all the states, ensure placement support to the training providers, conduct demand aggregation and skill gap in the field of apparel, made-ups and home furnishing sector, issuance of NSQS compliant certification. All the action takes place on Skill India portal of NSDC, established Center of Excellence, Delhi and Tirupur. So this point, a Center of Excellence will be covered by my colleague, Gaurav Parmar. Now, this is a picture of how our training is going on and the assessment, the certificates, which we provide to our candidates. Now, let's come to the topic, National Apprenticeship Promotion Scheme. So first, we should understand what is apprenticeship training. Apprenticeship training is a course of training in an industry or establishment under a contract of apprenticeship. It has two components. Number one is basic training and the other one is on-the-job training. I will explain in my next slide. Now, there is a concept of apprenticeship. We should understand. सो अप्रेंटिसशिप कॉन्सेप्ट क्या है, आपने सुना होगा ये नाम, बट ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली इंडस्ट्रीज में एक और डिमांड होती है स्किल्ड मैन पावर की और दूसरी और सप्लाई होती है. सप्लाई हम किसे कहते हैं, जो हमारे पास कैंडिडेट्स होते हैं, अवेलेबिलिटी होती है उन बच्चों की जो स्किल्ड हैं, एजुकेटेड हैं, बट वो इंडस्ट्री रेडी नहीं है. तो उनको इंडस्ट्री रेडी होने के लिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम गवर्नमेंट ने डिजाइन किया है, जिसमें वो कुछ मंथ्स और साल की ट्रेनिंग लेते हैं अप्रेंटिसशिप के अंदर, और उसके बाद वो इंडस्ट्री, उसमें उनको स्टाइपेंड भी दिया जाता है, एंड वो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद दे आर रेडी टू टेक अ जॉब इन द इंडस्ट्री और द सेम इंडस्ट्री जहां पे वो ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कर रहे हैं. सो नाउ व्हाट इज NAPS? NAPS is a scheme of Government of India to provide financial support to establishments undertaking the apprenticeship training. Establishments कौन होता है इसमें? ये वो फैक्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनके यहाँ पर ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती है, उसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं. NAPS was launched on 19th August 2016. Who can be an apprentice? अप्रेंटिस आप में से कोई भी हो सकता है. जो क्राइटेरिया है अप्रेंटिस का वो है मिनिमम एज 14 इयर्स होनी चाहिए और 18 इयर्स मैंडेटरी है इन केस ऑफ हजार्डियस इंडस्ट्रीज, जहां पे केमिकल या कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पे कम उम्र के बच्चों को अलाउड नहीं कर सकते हैं. और मिनिमम ऑफ 5th क्लास पास, आप एटलीस्ट 5th क्लास पास आउट होने चाहिए हैं. अप्रेंटिस मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑन द अप्रेंटिसशिप पोर्टल. अप्रेंटिसशिप के लिए आपको जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, एक बार आप वो हम वेबसाइट भी शेयर करेंगे, आप उस वेबसाइट पे अगर लॉगिन करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को एज अ अप्रेंटिस. नाउ J&K और नॉर्थ ईस्ट के केस में उनके आधार कार्ड और UIDs होना कंपल्सरी है.
Now there is a basic training provider. So basic training provider कौन होता है? जो बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर कोई भी इंस्टीट्यूट, स्किल इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, जैसे कि इसमें मेंशन है उनके नाम, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैविंग 2-star रेटिंग, और प्राइवेट ITIs 2.5-star रेटिंग, government and private training centers affiliated with NSDC under Smart Portal, इंडस्ट्रीज और एस्टैब्लिशमेंट विद इन हाउस बेसिक ट्रेनिंग फैसिलिटी, यानी कि जो इंडस्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट्स खुद भी अपने इन हाउस में अगर वो एक ट्रेनिंग फैसिलिटी कर सकते हैं तो फिर वो भी BTP बन सकते हैं। बेसिक ट्रेनिंग सेंटर सेटअप सपोर्टेड बाय इंडस्ट्री और इंडस्ट्री क्लस्टर्स, इंडस्ट्री चैम्बर्स, एसोसिएशंस, स्टैंड अलोन बेसिक ट्रेनिंग सेंटर्स लाइक पॉलिटेक्निक, यूनिवर्सिटीज, ये सब जो है इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेजेस, ये भी BTP बन सकते हैं। Training center empaneled under state government and other government schemes. Now apprenticeship training, मैंने अपनी लास्ट स्लाइड में कुछ मेंशन किया था कि इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बेसिक ट्रेनिंग एंड दूसरा कंपोनेंट होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। सो ये कंपोनेंट्स है क्या, बेसिक ट्रेनिंग क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है? So there is a simple difference. बेसिक ट्रेनिंग होती है फ्रेशर्स के लिए, जिन्होंने कभी कोई इंडस्ट्री में काम नहीं किया है, तो उनको पहले बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है 3 months की, और वो वंस दे आर ट्रेन्ड, जब उनकी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, देन दे आर रेडी टू गो अंडर द ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ओके, सो अब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कहाँ मैंडेटरी है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम रन करना? सो ऑर्गेनाइजेशन जिनमें 0 to 3 की स्ट्रेंथ है वो एलिजिबल ही नहीं है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए। जहां पर 4 to 29 की स्ट्रेंथ है एम्प्लॉइज की, वहां पे ये ऑप्शनल है, और जहां पर 30 और 30 से अबव एम्प्लॉइज आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पर अप्रेंटिस मैंडेटरी किए गए हैं गवर्नमेंट ने। उनका जो रेट है वो एटलीस्ट 2.5% to 15% ऑफ इट्स एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, यानी कि उनकी जो भी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ होगी उसका 2.5 से 15% तो एटलीस्ट उनको एज अ अप्रेंटिस रखना ही होगा अपनी एस्टैब्लिशमेंट में, जहां पर 30 से और अबव उनके एम्प्लॉयज हैं। डेजिग्नेटेड एंड ऑप्शनल ट्रेड। नाउ जो अप्रेंटिस है, अगर आप इसके बारे में थोड़ा जानेंगे या पोर्टल पे जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि एक आपको ऐसा टर्म मिलेगा डेजिग्नेटेड ट्रेड, एक सुनेंगे आप ऑप्शनल ट्रेड। तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि क्या है एक मेजर डिफरेंस बिटवीन डेजिग्नेटेड एंड ऑप्शनल ट्रेड। डेजिग्नेटेड ट्रेड बेसिकली ये DGT के थ्रू रन होता है, ऑप्शनल ट्रेड जो है वो NSDC के थ्रू रन होता है। अब क्या डिफरेंस है DGT और NSDC में? तो DGT ये टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है, और यहाँ पर जो आपका ऑप्शनल ट्रेड आता है ये क्रिएट करते हैं एम्प्लॉयर्स, एस्टैब्लिशमेंट्स और सेक्टर स्किल काउंसिल्स, क्योंकि और वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को देखते हुए ये कोर्सेस बनाए जाते हैं। नाउ मेनली डेजिग्नेटेड ट्रेड में टेक्निकल ही किया जाता है, टेक्निकल एजुकेशन को प्रेफरेंस दी जाती है, एंड ऑप्शनल में टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल बोथ उनको दी जाती है प्रेफरेंस। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। This I have already mentioned that 2.5 to 15% is a mandatory to engage apprentice in the factory or industry by the employer. Now, the basic training flexibility would be 6 months to 36 months, and 500 trades available, means 500 trades हैं apprentice program में जहां पर आप training कर सकते हैं। और ये लिंक देखिएगा, ये जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, ऑटोमेटेड प्रोसेस थ्रू द पोर्टल, दैट इज apprenticeshipindia.org। अगर आप लोगों के पास नोट कर सकते हैं तो आप इसको प्लीज नोट कीजिएगा, और ये वेबसाइट है जिसमें आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल में आप लॉग इन कर सकते हैं। नाउ अप्रेंटिसशिप में मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि ये जो कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट ने बनाया है टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल सपोर्ट आल्सो, राइट। अगर हमने फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की है तो देयर मस्ट बी अ फाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ फाइनेंशियल आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलेगा इसमें। तो वो इस स्लाइड में आपको मैं क्लियर करती हूँ।
यहाँ पे हम जब हम जॉब करते हैं तो हमें सैलरी मिलती है या हमको वेज मिलता है, राइट? या तो वेज एम्प्लॉयमेंट होता है या सैलरी मिलता है। बट अप्रेंटिसशिप में जब आप ट्रेनिंग पे जाते हो तो ये वो ट्रेनिंग है जहां पर आप सीखने के साथ साथ कुछ अर्न भी करते हैं। यानी आप फ्रेशर थे, पहले आपको बेसिक ट्रेनिंग दी गई 3 मंथ्स की, उसके बाद आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग गए। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग ने गवर्नमेंट ने हर बच्चे के लिए कुछ अमाउंट, जैसे हम स्टाइपेंड कहते हैं, वो फिक्स किया है एज पर देयर क्वालिफिकेशन। यानी कि आप 5th क्लास पास हैं, 12th पास हैं, डिग्री है, डिप्लोमा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी स्टाइपेंड फिक्स की है। तो आपको एवरी मंथ आपको वो एम्प्लॉयर और जो फैक्ट्री जो एस्टैब्लिशमेंट है वो आपको ये स्टाइपेंड प्रोवाइड करेगी। वो इससे कम या इससे ज्यादा आपको अगर ज्यादा देना चाहें दैट इज अप टू देयर विश, लेकिन इससे कम वो आपको नहीं दे सकते। अगर यहाँ पे लिखा है कि स्कूल पास आउट जो 5th से 9th स्टैंडर्ड पास आउट हैं वो 5,000 पर मंथ के लिए एलिजिबल हैं, तो वो 5,000 उनको जरूर मिलेगा। और इस अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंदर आपका बैंक अकाउंट ओपन होना बहुत जरूरी है। अगर आपको एम्प्लॉयर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन देता है या कैश देता है तो वो आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। सो स्कूल पास आउट जो 5th से 9th है उनका 5,000 है, क्लास 10 पास आउट के लिए 6,000 पर मंथ है, क्लास 12th के लिए 7,000 पर मंथ है, नेशनल और स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए 7,000 पर मंथ है, टेक्नीशियन, अप्रेंटिस और वोकेशनल सर्टिफिकेट होल्डर और सैंडविच कोर्स यानी उनके लिए 7,000 पर मंथ है, टेक्नीशियन, अप्रेंटिस और डिप्लोमा होल्डर उनके लिए 8,000 है, और ग्रेजुएट्स और डिग्री अप्रेंटिस के लिए 9,000 पर मंथ है। यानी कि जो मैक्सिमम स्टाइपेंड दिया है दैट इज 9,000 पर मंथ। और ये आपका 10% इसमें हाइक होती है आपके, अगर 1 साल आप पूरा कर लेते हैं तो इन द सेकेंड ईयर, यानी कि अगर जब आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 1 साल तक ले ली तो ये 5,000 में और 10% ऐड होके आपको मिलेगा आफ्टर द सेकेंड ईयर। नाउ some legal aspects of this apprenticeship program. Each apprentice undergoing apprenticeship training in designated or optional trade in an establishment is apprentice, not a worker. इसका मतलब ये है कि आप में से कोई भी अगर अप्रेंटिस बनता है किसी फैक्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट में तो वो कोई वर्कर या एज अ एम्प्लॉय नहीं ट्रीट किया जाएगा, उसको ट्रीट किया जाएगा एज अ अप्रेंटिस। और अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले तो एक ट्रेनी के तौर पे उसको ट्रीट किया जाएगा, ना कि वर्कर के तौर पे। The provision of any law with respect to labor shall not apply to or in relation to such apprentice. कोई भी लेबर लॉ आप उस केस में अप्रेंटिस के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज वो एक सिंपली अप्रेंटिस है, ना कि कोई वर्कर है। Employer have the discretion to pay PF to apprentice if PF and Miscellaneous Provision Act 1952 permits so. That means अगर एम्प्लॉयर चाहते हैं तो वो पीएफ दे सकते हैं, अगर एम्प्लॉयर का विश है कि वो नहीं देना चाहते कोई पीएफ तो इट इज ओके, इट इज नॉट मैंडेटरी। An apprentice engaged under the Apprentice Act 1961 is not counted for coverage under the ESI Act. जो अप्रेंटिस इंगेज होते हैं फैक्ट्री प्रमाइस में वो ईएसआई के लिए एलिजिबल नहीं होते। ईएसआई के लिए केवल वही एलिजिबल होते हैं जो एम्प्लॉय होते हैं या फिर वर्कर होते हैं। सो इस केस में गवर्नमेंट अप्रिशिएट करती है और एनकरेज करती है कंपनीज को कि वो अपना ग्रुप इंश्योरेंस लें। नाउ फाइनेंशियल सपोर्ट टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर, हमने बताया था कि बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स होते हैं जो बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, और एस्टैब्लिशमेंट जहां पे आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग करते हैं, और अप्रेंटिस जो हम जिनको हम ट्रेनी कहते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं जो एक्चुअल में ट्रेनिंग लेते हैं एस्टैब्लिशमेंट्स में। तो उनको क्या फाइनेंशियल सपोर्ट है? बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर को 7,500 मिलते हैं फॉर 3 months 500 आवर्स, मतलब 3 महीने की ट्रेनिंग कराने पर किसी भी ट्रेनिंग पार्टनर को जो बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर के लिए अपने आप को रजिस्टर करते हैं अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे, उनको गवर्नमेंट 7,500 यानी कि 7,500 की हेल्प करती है पर कैंडिडेट एंड आफ्टर दी कोर्स कंप्लीशन 3 months का जो कोर्स है, या 500 आवर्स। नाउ एस्टैब्लिशमेंट और एम्प्लॉयर, एस्टैब्लिशमेंट को क्या गवर्नमेंट का फाइनेंशियल सपोर्ट है? सो दैट इज 25% ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड स्टाइपेंड, यानी कि आपको जो 5,000 स्टाइपेंड मिला है उसका 25%, या 6,000 अगर स्टाइपेंड है तो उसका 25%,
गवर्नमेंट उनको देती है, या फिर 1500 विच एवर 1500 या 25% ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड स्टाइपेंड ही के लिए एस्टैब्लिशमेंट एलिजिबल होती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ अप्रेंटिस को जो बेनिफिट मिलता है वो उनको स्टाइपेंड मिलता है, और अगर वो अपनी बेसिक ट्रेनिंग किसी स्टैब्लिशमेंट में करते हैं तो उनको 50% उसके स्टाइपेंड का अपनी बेसिक ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में भी मिलता है। सो दिस इज द फाइनेंशियल सपोर्ट जो मैंने भी एक्सप्लेन किया। नाउ कौन सी कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल हैं और ऑप्शनल ट्रेड के अंदर अप्रेंटिस बनने के लिए? कोई भी आईटीआई ट्रेड है उसको वो बन सकते हैं, और उनको अपनी बेसिक ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी आईटीआई पास आउट है। तो यहाँ पे एग्जेम्पशन के बारे में हम बता सकते हैं कि हमें डायरेक्टली ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हम कैसे जंप कर सकते हैं। अगर हम चाहें, हम वो 3 मंथ्स का जो पार्ट है हमने अगर वो स्किप करना है, तो उसके लिए अगर आपने पहले कोई भी स्किल ट्रेनिंग ली है या आप किसी भी ट्रेनिंग पार्टनर के साथ अगर अभी अपना वो कोई कोर्स कर रहे हैं, तो यू आर एलिजिबल टू डायरेक्टली जंप ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आपको वो 3 महीने की बेसिक ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। द पर्पज इज कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, क्या हमें स्किल होनी चाहिए। तो वो चीजें अगर आपने ऑलरेडी किसी वोकेशनल इंस्टीट्यूट में कर ली है तो फिर आप सीधा ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो कोई भी आईटीआई जो कैंडिडेट है वो एग्जेम्प्ट है इसकी बेसिक ट्रेनिंग के कोर्स से। डिप्लोमा डिग्री होल्डर वो भी है। कोई अगर आपने शॉर्ट टर्म स्किल सर्टिफिकेट लिया है, पीएमकेवीवाई हुआ, डीडीयूजीकेवाई है, या स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन का कोई है स्कीम, या किसी भी प्रकार का आपने अगर कोई भी स्किल सर्टिफिकेट आपने कैरी किया है, इफ यू आर अ होल्डर ऑफ अ स्किल सर्टिफिकेट, देन यू आर एलिजिबल टू जंप ऑन द जॉब ट्रेनिंग डायरेक्टली। Pursuing degree or diploma, yes you can. Now benefits to the industry. इंडस्ट्रीज को जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो पहला तो ये कि वो ईपीएफ ईएसआई अपना इसमें बचा सकते हैं और डायरेक्टली वो स्टाइपेंड पे करेंगे। अदरवाइज एक एम्प्लॉयर के लिए बड़ी हेडेक होती है ईपीएफ ईएसआई ये सब कराना, इनकी कॉस्ट भी बढ़ती है। तो वो कॉस्ट उनकी सेव होती है इसमें, और उनको सिर्फ एक स्टाइपेंड अमाउंट देना होता है मिनिमम, जो उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का फिक्स्ड किया हुआ है ऑलरेडी। नाउ इन एडिशन कंपनीज एंगेजिंग अप्रेंटिस कैन आल्सो अंडरटेक स्किल ट्रेनिंग फ्रॉम देयर सीएसआर फंड्स। यस, वो अपना सीएसआर फंड को भी इसमें एंगेज कर सकते हैं फॉर दिस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। Now financial support is available for them 1500 per month, यानी कि अगर जो एम्प्लॉयर अपनी एस्टैब्लिशमेंट में अगर कैंडिडेट्स को एंगेज करते हैं तो उनको 1500 पर मंथ मिलता है पर कैंडिडेट, पर अप्रेंटिस। Now benefits to the BTP. BTP का बेनिफिट हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि 7500 3 मंथ्स उनको मिलता है। पीएमकेवीवाई के केस में उनको एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि इसको अगर वो अपने पीएमकेवीवाई के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने के बाद अगर वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में शिफ्ट करते हैं तो वो उनका प्लेसमेंट काउंट होता है। बिकॉज अक्सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देखी गई है ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ में, जो हम लोगों ने भी फील की है पर्सनली, वो यही कि प्लेसमेंट में बहुत बड़ा इशू आता है। तो वो प्लेसमेंट वाला इशू भी सॉल्व होता है अगर आप उनको एज अ अप्रेंटिस रजिस्टर कराते हैं किसी एस्टैब्लिशमेंट में। तो आपका वो जो प्लेसमेंट वाला पॉइंट जो क्लियर नहीं हो पाता है तो वो यहाँ पर क्लियर हो जाता है। आपके सभी बच्चों को प्लेस्ड माना जाएगा कि वो अगर कहीं एज अप्रेंटिस लगते हैं तो वो प्लेस्ड बच्चे माने जाएंगे इन केस ऑफ पीएमकेवीवाई ओनली। ये पोर्टल की एक स्क्रीनशॉट है। जब आप पोर्टल पे लॉगिन करेंगे इस वेबसाइट के थ्रू तो आप देखेंगे कि पोर्टल में एक ऑप्शन दिए होंगे, गेट स्टार्टेड ऑप्शन। गेट स्टार्टेड को आप क्लिक करेंगे तो कैंडिडेट यूजर मैनुअल, एस्टैब्लिशमेंट यूजर मैनुअल, कैंडिडेट मतलब जो अप्रेंटिस बनना चाहते हैं उनके लिए मैनुअल है पूरा, एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए है। और राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो उसमें कैंडिडेट लॉगिन दिया हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट लॉगिन दिया है, ट्रेनिंग पार्टनर लॉगिन है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लॉगिन है। सो आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं, यानी अगर आप अप्रेंटिस हैं या एस्टैब्लिशमेंट है तो आप अपने दिए हुए लॉगिन पे अगर लॉगिन करते हैं दिए हुए ऑप्शन पे तो आप अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट योर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। नाउ अब अप्रेंटिसशिप के बारे में हमने जितना भी अभी समझा, अभी हमें लास्ट में अगर मैं कंक्लूड करूंगी तो अगर हम अप्रेंटिसशिप कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं
तो डेफिनेटली उसकी कोई असेसमेंट भी होगी। तो यस ऑफ कोर्स यहाँ पे भी असेसमेंट होगी। प्रैक्टिकल असेसमेंट जो होगी वो आपकी स्टैब्लिशमेंट में ही होगी। जिस भी फैक्ट्री में, अगर सपोज आप मोंटी कार्लो में एज ए अप्रेंटिस लगे हैं या वर्धमान में लगे हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो वो लोग आपकी असेसमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स वही असेस करेंगे। एंड जो थ्योरी वाला पार्ट है वो रिस्पेक्टिव सेक्टर स्किल काउंसिल करेगी। सपोज अगर आप अपैरल ट्रेड के बच्चे हैं तो आपका जो सेक्टर स्किल काउंसिल है, यानी कि हम जो है अपैरल सेक्टर स्किल काउंसिल, हम लोग ही आपका असेसमेंट करेंगे और आपका जो सर्टिफिकेट आएगा वो ज्वाइंट आएगा। फैक्ट्री प्लस सेक्टर स्किल काउंसिल का आपको ज्वाइंट सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें प्रैक्टिकल एंड थ्योरी आपकी मार्किंग हुई होगी। नाउ दिस इज आई ऑलरेडी मेंशन कि पेमेंट जो होगी वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, बैंक अकाउंट ओपन होना बहुत जरूरी है और वो अमाउंट आपकी बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर एम्प्लॉयर आपके अकाउंट में, यानी कि कैंडिडेट के अकाउंट में अगर पैसे डाल रहा है, चाहे वो कैश के थ्रू डाल रहा है या ऑनलाइन डाल रहा है, वो पेमेंट दिखना बहुत जरूरी है। नाउ ये कुछ कंपनीज की लिस्ट है जो ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम रन कर रही हैं, जैसे कि अरविंद लिमिटेड, स्पेक्ट्रा फैशन प्राइवेट लिमिटेड। देयर आर सो मेनी कंपनीज जो अभी इस वक्त ये रन कर रही हैं। और ये तो जो लिस्ट है इसमें और भी नाम अपडेट हुए हैं अभी। तो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो मैं आपको गाइड करूंगी वो ये कि आप सबसे पहले अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे लॉग इन करें, अपना अकाउंट क्रिएट करें एंड फिर वहां पे आपको एक्सप्लोर करने के लिए कई सारे कोर्सेज होंगे, जॉब रोल्स होंगे, जहां पर आप अपनी जहाँ पे आपने स्किल ट्रेनिंग का अगर कोर्स लिया है तो उससे रिलेटेड आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप बेसिक ट्रेनिंग के लिए पहले अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आपको कोई भी इस जर्नी में कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो AMHSSC ऑलवेज अवेलेबल एंड वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। आप हमसे पूछिए कहीं पे भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो वी विल रिजॉल्व योर डाउट्स। और अब एक चीज जो सबसे हम शॉर्ट में कंक्लूड करते हैं वो ये कि ये जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है इसके ऊपर हम लोग इतना क्यों प्रमोट कर रहे हैं, क्यों गवर्नमेंट इतना इसको पुश कर रही है। तो उसका रीजन ये है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है इस स्किल इकोसिस्टम में, प्लेसमेंट्स। एक तो प्लेसमेंट्स बहुत बड़ा चैलेंज आता है और दूसरा अगर बच्चों की जो मोबिलाइजेशन है वो अगर ठीक से ना हो, दूसरा चैलेंज ये आता है। तो अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो उसमें आपने स्किल का कोर्स कर लिया, राइट? अभी जस्ट आई स्टॉप माय पीपीटी, दिस इज माय कांटेक्ट डिटेल्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी काइंडली रीच मी। सो जस्ट सो अब प्लेसमेंट में अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि अप्रेंटिस में क्यों बनूं, क्या रीजन है, तो उसका एक सिंपल सी आप चीज सोचिए। आपने कोई ट्रेनिंग कोर्स है, आपने 3 महीने का या 500 आवर्स का आपने जो भी ट्रेनिंग कोर्स किया है, उसके बाद आपकी सपोज जॉब लग जाती है, वेल एंड गुड। इन केस अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो यू हैव अ ऑप्शन, मतलब यू डोंट नीड टू सिट एट योर होम कि मतलब मेरी जॉब नहीं लगी तो मुझे अब घर बैठना पड़ेगा। नो, आपके पास बहुत बड़ा ऑप्शन है। यू कैन अप्लाई एज ए अप्रेंटिस। आप किसी भी स्टैब्लिशमेंट में अप्रेंटिस की तरह लग सकते हैं। आप सीखेंगे, आपके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आएगा, नंबर 1। क्योंकि ज्यादातर प्लेसमेंट कहीं ना कहीं इस वजह से भी नहीं होती कि वो कह देते हैं हमारे मतलब हमें चाहिए कोई एक्सपीरियंस, हमें कोई फ्रेशर नहीं चाहिए। स्किल ट्रेनिंग तो कर ली लेकिन उनके पास फिर भी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो चीज आपकी सॉल्व होती है अगर आप एज ए अप्रेंटिस कहीं पे ज्वाइन करते हैं। नंबर 2, आप खाली हाथ नहीं ज्वाइन करते हैं, आपको स्टाइपेंड भी मिलता है जो 5000 से 9000 की लिमिट है। सो यू विल लर्न प्लस यू विल अर्न, और उसके साथ साथ आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिल रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है। सो इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। आई अप्रिशिएट कि आप सब इसके, मैं ये प्रोग्राम बेसिकली कंडक्ट करने का पर्पज ही है आप लोगों को इसकी अवेयरनेस देना। क्योंकि काफी बच्चे होंगे जिन्होंने ये शायद नाम पहली बार सुना होगा या उनने सुना होगा तो उनको पता नहीं होगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। सो वो चीज आपको हमारा बताना यहाँ पे मेन पर्पस था। इसके बाद अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज रेज कर सकते हैं। उसके पहले मेरे कुलीग हैं गौरव परमार, वो आपको बताएंगे कि हमारा दिल्ली में और तिरुपुर में हमारे COE हैं। व्हाट इज COE? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपने ओपन किए हुए हैं, उसके बारे में वो आपको थोड़ा ब्रीफ करेंगे। एंड उसके बाद जब गौरव की प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी, काइंडली आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। थैंक यू। First of all, good afternoon all of you.
myself Gaurav Pramar, and I'm working as a senior executive operation in the apparel made ups and home furnishing sector skill process. First of all, I would like to thank you, KP ma'am, for giving me such a nice opportunity to explain you all about our Center of Excellence. So just I'm going to brief you about Center of Excellence. So AMHSSC plans to open 4 Center of Excellence. Initially, we have started 2 Center of Excellence. One is in Delhi and second is in Tirupur. गौरव हिंदी में थोड़ा इनको एक्सप्लेन करना। हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो अभी स्टार्ट करने का सोचा था, तो हमने 4 Center ऑफ एक्सीलेंस सोचे थे। सो इनिशियली हमने अभी 2 Center ऑफ एक्सीलेंस स्टार्ट कर रहे हैं। एक दिल्ली में सिलेक्टेड है और एक तिरुपुर में सिलेक्टेड है। तो मेन कॉन्सेप्ट जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का है, इन्वायरमेंट दैट स्ट्राइव फॉर एंड सक्सीड डेवलपमेंट हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट इन फील्ड ऑफ रिसर्च। सो मेन जो हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टार्ट करने का मोटिव है, तो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने का है जिसमें हर एक जो अपडेटेड मशीनरी जो भी अभी इंडस्ट्रीज में यूज हो रही है, वो सारी की सारी हमारी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में है। सो वो अभी आप नेक्स्ट स्लाइड्स में पिक्चर्स देखेंगे उसकी। सो इसमें सेकंड ऑप्शन हमारा ये भी था कि जो भी न्यू जो स्किलिंग के बच्चे हैं, उनको लाइक कोई अगर पुरानी मशीनरी है वहाँ पे इंडस्ट्रीज में, तो वो हमारे पास एक स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी हैं। सो वो हमारे सेंटर्स में आ सकते हैं, जो हमारा दिल्ली में भी है और तिरुपुर में भी है। सो हमारे पास अपने मॉड्यूल हैं, तो हम उनको उसके बारे में अच्छे से ब्रीफ कर देते हैं। तो सीओई का जो मोमेंटम है, जो मेनली जो इंडस्ट्रीज के लिए हम बोल सकते हैं उसको। सो इंडस्ट्री के लिए पहली बात तो ये रिड्यूस कॉस्ट करता है बाय प्रोवाइडिंग लेटेस्ट सोल्यूशन। एज मैंने आपको सबको पहले बताया था कि हमारे पास लेटेस्ट मशीनरी है, और कुछ मशीनरी ऐसी भी है जो हमने जर्मनी से इंपोर्ट करी है। सो इंक्रीज एफिशिएंसी सेकंड पॉइंट है कि इसमें जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है बाय हम उनको अपडेटेड जो उनको प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज वहाँ पे हम उनको करवाते हैं साथ में, और उनका कम्युनिकेशन स्किल्स भी वहाँ पे हम करते हैं। सो सेकंड रिड्यूस रिस्क है बाय प्रोवाइडिंग लेटेस्ट अपडेटेड स्किल्स। सो हम लेटेस्ट अपडेटेड स्किल्स हम आगे जो भी हमारे एमडीपी प्रोग्राम से हम आगे देते हैं इंडस्ट्रीज को। सो वो इंडस्ट्री के लिए रिड्यूस रिस्क करता है। Improvements by constantly providing best practices, update trainings, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो इसमें हम जो एमडीपी और एसडीपी हमारे जो कोर्सेज हैं, उसमें हम बेसिकली हम बच्चों को और जो हमारे मैनेजर लेवल्स के जो भी हमारे पास आते हैं कैंडिडेट्स, तो हम उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस देके उनको हम इम्प्रूव करते हैं। करियर एडवांसमेंट, इट क्रिएट्स कंपेलिंग न्यू करियर अपॉर्चुनिटी टू प्रोफेशनल्स। तो हमारा इससे ये है कि हम जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनको न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज पे इसमें देते हैं। सेकंड है, सो ये हमारी कुछ मशीनरीज हैं जो कि मैं आगे आपको ब्रीफ करूंगा। सो दिस इज आर रिसेप्शन एरिया ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये हमारा दिल्ली का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसका रिसेप्शन एरिया है। सो ये डिजिटल क्लासरूम्स हैं हमारे, जहाँ पे हम एमडीपी और जो भी हमारे जो ऑफरिंग्स हैं हम अभी करते हैं, तो यहाँ पे हम क्लासेस वगैरह बच्चों के लेते हैं। सो ये मशीनरी का सेटअप है हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिल्ली में, और तिरुपुर में भी ऐसा सेम ही है। सो इस मशीनरी के सेटअप में जो अपडेटेड मशीनरी जो हमारी अपडेटेड जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं जो यूज करती हैं, वो सेम मशीनरी हमने वहाँ पे रखी हुई है। सो ये 12 हेड कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी मशीन है। ये पैटर्न मेकिंग का सेटअप है। ये कटिंग टेबल है। और ये जो आपको बोल रहा था कि हमने जर्मनी से इंपोर्ट करी मशीन है, तो ये वो वाली मशीन। ये कटिंग मशीन है। सो ये कैफेटेरिया है जो हमारे दिल्ली और तिरुपुर दोनों में ही लगभग सेम है, जो स्टूडेंट्स के लिए कैफेटेरिया हमने वहाँ पे बनाया हुआ है। सो बेसिकली जो हम ऑफर करते हैं, एक तो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, जो भी आपको ट्रेनर्स आपको टीच करते हैं, अभी आप जो भी कोर्सेज वगैरह भी आप कर रहे हैं, तो हम उनको टीओटी भी हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे सीओई में। ट्रेनिंग ऑफ असेसर्स, जो असेसर्स आपका एग्जाम लेने आते हैं, जैसे आपने एक ट्रेनिंग के जब हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो वहाँ पे हम ट्रेनिंग ऑफ असेसर्स भी करते हैं। स्पेशलाइज्ड कोर्सेज एंड ट्रेनिंग्स फॉर करंट एंड फ्यूचर फैशन स्टूडेंट्स। सो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रहा था, एक स्पेशलाइज्ड कोर्सेज जो है हमने एक खुद से ही बनाए हुए हैं, जो कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं और जो फ्यूचर वाले आने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो वो सारे वहाँ पे हमारे यहाँ पे वो सारी चीजें सीख सकते हैं।
मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एमडीपी आपको पहले बता रहा था, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कोई अभी की फैक्ट्री में वर्क कर रहा है और कोई फैक्ट्री चाहती है कि उसकी स्किल्स वगैरह इंप्रूव करे, तो एक सीओई हमारा एक ऐसा सेटअप है, वहाँ पे हमारी हर एक टाइप की स्किल्स उसकी हम इंप्रूव करते हैं। स्पेशल प्रोग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सो अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, अगर कोई ट्रेनिंग पार्टनर है हमारा, तो वो कुछ स्पेशलाइज उसको मशीनरी के बारे में बताता है, तो वो हमारे पास आ सकता है इजिली। स्टूडेंट मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो स्टूडेंट्स का भी अभी मैं एसडीपी भी आपको भी मैं बताऊंगा। इंटरप्रेन्योर सेल भी है, मेकर स्पेस है, और पे एंड यूज फैसिलिटीज है, जो कि मैंने आपकी अभी आपको कवर करी थी। So these are some student development programs. फैशन एंटरप्रेन्योरशिप, हम इसमें फैशन एंटरप्रेन्योरशिप ऑफर करते हैं। ई कॉमर्स बायर है, इसेंशियल ड्रेसिंग अप एज पर योर बॉडी टाइप। फैशन फोरकास्टिंग आती है, प्रोडक्ट फोरकास्टिंग आती है, फैशन स्टाइलिस्ट का भी इसमें ऑफर करते हैं। फैशन इवेंट डिजाइन एंड मैनेजमेंट भी इसमें ऑफर करते हैं। कस्टमर डिजाइन भी, सोशल कंप्लायंस प्रोफेशनल, कैड एंड पैटर्न मेकिंग आल्सो, डिजाइन थिंकिंग, इमेज कंसल्टेंट एंड स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। तो ये सारे कुछ प्रोग्राम्स हैं जो हम अभी सीओई में स्टूडेंट्स के लिए ऑफर करते हैं। ये सब ये कुछ एमडीपी प्रोग्राम्स हैं जो कि हम मैनेजर लेवल पे, अगर कोई कोई वर्किंग है कहीं पे तो वो ऐसा प्रोग्राम करना चाहता है, तो ये देयर आर सम programs which we have right now with us. Supervisory skills in manufacturing, improving quality and presentation, time study, managing quality and manufacturing, cutting room management, customer relationship building। तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो भी हम सीओई मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए ऑफर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी है और कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर किसी को भी अभी अभी अगर कोई इंक्वायरी है तो यू कैन आस्क टू मी। अगर बाद में कोई इंक्वायरी आती है तो आप मुझे राइट भी कर सकते हैं ईमेल पे, और इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी तो ये मेरा नंबर भी मेंशन है, तो आप यहाँ से आप नंबर नोट कर सकते हैं। Then I'll drop my contact details in chat box also. Thank you, ma'am. Thank you, Gaurav. There is one Prinka, she is raising hands. Okay, Priyanka, you can drop your query in the chat box. Is Tynor in Mohali doing NAPS? Priyanka, it is the information is available on the NAPS portal. You can check if you just log into the NAPS portal. You can check that there is an industry from Mohali is doing NAPS. So yes, of course, you can apply. So I would thank you everyone for sparing your time, valuable time, I can say. अगर हमने जो कुछ भी आप लोगों को तक ये बात पहुंचाई है, अगर आप लोगों को ये चीजें क्लियर होती हैं तो हमारा पर्पस सॉल्व होता है। इन केस अगर कोई चीज है, कोई क्वेरी है जो आपकी रहती है, तो आप इस सेशन के बाद भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं अपने अपने सेंटर हेड्स के थ्रू, और जो भी यहाँ पे ट्रेनर्स हैं या अगर ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं तो वो डायरेक्टली एसएससी को कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर नैप्स, सीओई या कोई भी एनी अदर प्रॉब्लम है। इनफैक्ट प्लेसमेंट्स के लिए भी सीएस श्रीधर सर इज टेकिंग केयर ऑफ द प्लेसमेंट थिंग ऑल्सो, जिसमें अगर आप लोग जॉब देख रहे हैं तो अपना आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जो भी आपका वो है रेज्यूमे है, so we can upload. There is a ASEEM portal. Sir, let's just brief introduction about the ASEEM portal, so बच्चों को उसके बारे में भी आइडिया लग जाएगा and they can share the जो भी उनका अगर यहाँ पे ट्रेनिंग पार्टनर्स जो हैं उनको लगता है कि प्लेसमेंट में कोई इशू आ रहा है तो they can contact us. Yeah. Please, sir. Yeah. So good afternoon, everybody. I am C.S. Sridhar, Joint Director of Apparel Sector Council from Southern Region. The government has through ministry, it has formed a portal called ASEEM portal, ASEEM. ASEEM. I don't have a PPT right now. So it's okay, sir. I'll just write it here, ASEEM portal. Yeah, ASEEM portal. We can. This comes under Atmanirbhar Bharat, which was the scheme announced during COVID period to come out of the COVID economic deficiencies. The government has introduced schemes for various ministries. Our ministry has brought ASEEM portal. This was basically to get the job for people who have been relocated from their working places due to Corona pandemic.
like the people from foreign countries, they came here. I mean, they were working in foreign countries and they came back to their home places. Similarly, in India, inside India, from one place to another place, there was movement. The people were working in away from their hometown. They have reached back to their hometown. Now they are not getting job. All these things are happening, So सर हिंदी में order- इनको बताइएगा सर. हिंदी में भी. Yes. Hindi. Okay. Yes. Otherwise, I can explain, sir. That's okay. Yes, sir. तो इसलिए it's very difficult in Hindi. No, it's okay, sir. Yeah. I will. Yeah. So इसलिए गवर्नमेंट ने ये पोर्टल किया है जिसमें जिन को नौकरी चाहिए वो उसके अंदर जाकर के अपना डिटेल्स भर सकते हैं. उसमें पोर्टल में आपको रजिस्टर करना है. उसके एज एन एम्प्लॉई जॉब सीकर आपको उसके अंदर अपनी जो डिटेल्स है, अपना क्या पढ़ाई किया है, क्या कैसे जॉब चाहते हो, किस जगह में आपको जॉब चाहिए, जैसे कि अमृतसर में चाहिए या मोहाली में चाहिए, ऐसे भी आप सेलेक्ट करके उसमें डाल सकते हैं. इसी तरह एम्प्लॉयर्स भी उस पोर्टल में अपना डिटेल्स डालते हैं. वो लोग है ना अपना इंडस्ट्री के नाम देते हैं, लोकेशन देते हैं, सब कुछ देते हैं. तो ये पोर्टल जो है अपने आप ऑटोमेटिकली, इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट करता है आपको. जो भी चॉइसेस है वो सब धीरे धीरे आने लगेंगे. धीरे धीरे आप जब भी चेक करोगे आपको पोर्टल में है ना अपने पेज ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको ये सारे चीज कहाँ आपको सूटेबल जॉब अवेलेबल है ये सब मिलेगा. तो आप सब लोग ये असीम पोर्टल एक बार जा करके जस्ट गूगल करो ASEEM, आपको पोर्टल आएगा, ओपन करो, उसके अंदर जा करके एज एन एम्प्लॉई रजिस्टर करो. रजिस्टर करके उसके अंदर क्या है देख लेना, आपको खुद समझ आएगा. इट इज वेरी इजी पोर्टल, वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पोर्टल है वो. तो आप लोग पोर्टल का लिंक बताइएगा तो मैं यहाँ पे लिंक की जरूरत ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना. गूगल ASEEM गूगल करो, ASEEM पोर्टल करके जस्ट गूगल करो, वो अपने आप उसमें है ना चॉइसेस आएगा. यू कैन जस्ट सेलेक्ट द फर्स्ट चॉइस, उसके अंदर जा करके आप देख लेना. आप लोग इसमें बेनिफिट बहुत है इसके अंदर. ये फ्री है, आपको एक पैसे की भी यू नीड नॉट स्पेंड, आपको खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है. ये गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए स्पेशली ये पोर्टल ओपन किया है. आप सब लोग इसको इस्तेमाल करके अपना जो स्टेटस बढ़ा दीजिए. ये जो अपने अभी जॉब में है वो भी इसके अंदर जा करके अपना न्यू जॉब भी फेच कर सकते हैं. ओके, आई थिंक आई हैव clearly explained with whatever little Hindi I know. Now over to Kirti madam. And anybody if they have any questions they can ask us. तो थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सभी स्टूडेंट्स को. सर ने जो किया है एक्सप्लेन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई एक अप्रेंटिसशिप जो पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो क्रिएट किया जिसमें आप एज ए अप्रेंटिस अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह से एक असीम पोर्टल भी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही क्रिएट किया है, जिसमें आप फॉर द जॉब आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे जॉब सीकर्स होते हैं एंड जो एम्प्लॉयर्स होते हैं. तो वो बेसिकली इनको कनेक्ट करता है सीकर्स को विद द एम्प्लॉयर्स. तो कोई भी अगर आपको डाउट है आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं. अच्छा, किसी दो बच्चों ने ये क्वेरी की है, किसी ने पूछा है कि क्या अमृतसर में कोई अप्रेंटिस रन कर रहा है, अप्रेंटिस कर रहा है इंग्लिश लिखने के लिए अमृतसर और मोहाली, राइट. तो आपको मैंने बताया कि आप जैसे ही आप लॉग इन करेंगे अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर, जिसका लिंक मैं यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में डाल देती हूँ, आप प्लीज उसमें लॉग इन करिए, अपनी प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, अपनी स्टेट के बाद आपको जिस सिटी में आपको एज अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना है आप वो सिटी में क्लिक करेंगे, एम्प्लॉयर्स को करेंगे, ट्रेड को करेंगे एंड देन वो आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो आपको उसके लिए लॉग इन करना पड़ेगा. इस तरह से हम अगर पूछेंगे कि पुणे में कोई है अप्रेंटिसशिप मॉडल कोई रन कर रहा है एम्प्लॉय, यस ऑफ कोर्स डेफिनेटली कर रहे हैं, अमृतसर में भी होंगे,
लॉग इन नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा। तो यू हैव टू मेक योर प्रोफाइल, जैसे कि naukri.com होता है, आप उस पर भी अपनी प्रोफाइल बनाते हो, या किसी भी कभी भी आपने कोई प्रोफाइल बनाई होगी गूगल पर किसी भी अकाउंट में, तो इसकी भी एक प्रोफाइल बनती है, और वो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल इजी स्टेप्स हैं, आपको बस वो कंप्लीट करने होंगे। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड, and thank you so much for your time. Thanks to my team APSSC. Thanks to our sir, Rupak sir. All the best students, train partners, जो भी यहाँ पर हमारे साथ स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए हैं, आई विश यू ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेरी आती है या कभी भी आपको फ्यूचर में कोई भी गाइडेंस चाहिए, वी आर हियर AMHSSC। थैंक यू। So I think Sridhar sir, can we close Yeah, I this? have one more. There was a query. Thank you, Kavita ji, for reminding. Actually, for ASEEM portal, it is available in Play Store. You can download it in your mobile also. ASEEM, ASEEM portal is available in Play Store. You can download it in your mobile itself. Great. तो Play Store में ASEEM portal app टाइप करने का, आप टाइप कीजिएगा ASEEM portal app. ठीक है, we can close the session. Thank you so much everyone once again.